Hello my dear students, welcome to Adarsh Puchandra YouTube channel. Dear students, today we are going to study class IDS PT1 science MCQ type questions and answers. First question for you, chromosome are made of DNA and protein. DNA and proteins. DNA and proteins. DNA and proteins. Cell organelles deoxifying poisonous drugs inside the cell, lysosome. Lysosome deoxifying the drugs and poisonous substance, lysosome. Next question, powerhouse of cell, mitochondria. Powerhouse of the cell. First question, chromosome are made of DNA and proteins. Cell organelle deoxifying poisonous and drugs, lysosome. Third question, powerhouse of a cell is mitochondria. Then protein factory of a cell. Endoplasmic reticulum, ribosomes. Inside this ribosomes, endoplasmic reticulum. Inside the endoplasmic reticulum there are ribosomes. Row endoplasmic reticulum are protein synthesis के लिए ribosomes are protein factory of the plant, protein factory of the cell. Similarly, another question, SI unit of acceleration, meter by second square or meter per second square inverse. Next question, gas is a vector quantity. Here is acceleration, velocity, distance and displacement. Scalar quantity means only magnitude, not direction. It is your distance. Distance is your vector quantity. 5 kilometer per hour is gas meter per second. Do you know 5 kilometer per hour, kilometer to meter करो into 1000 divided by hour को सेकेंड करने से ये हो जाएगा 3600. या 2020 का कैंसर हो गया. इधर 10 2 से कैंसर होने से 5, इधर 36 2 से कैंसर होगा तो ये हो जाएगा 18. 5 by 18 that means 25 divided by 18 decimal expected is 25. Now 339 Kelvin is gas degree Celsius. 339 से माइनस करना है तुमको. डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए 33 केल्विन माइनस 273 माइनस 273 339 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा. 9 से 3 गया 6 और 13 से 7 गया 6, इधर 60 डिग्री सेल्सियस 66. सॉरी, increasing temperature particles get more gas energy, kinetic energy. टेम्परेचर इंक्रीज होने से पार्टिकल्स को ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलता है. काइनेटिक एनर्जी increasing the temperature particles get more kinetic energy. Gas causes cooling, evaporation causes cooling. Evaporation causes cooling. Who discovered Golgi apparatus? कैमेलियो गल्गी, गल्जी apparatus को डिस्कवर
पहले Cameleogalgi, the Golgi apparatus are discovered by Cameleogalgi. Then full name of ATP, last question in this section. Full name of ATP. ATP का पूरा नाम क्या है? ATP. Full name of ATP. हो गया. Adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate. Full name of the word ATP. Adenosine triphosphate. Some other questions for you. For all. Now some short answer type questions, then long type answer. Next question. Mother cell divides to 4 daughter cell is called a dash. जब mother cell, there are 2 types of cell division. One is your mitosis and meiosis. It is your, look at here, it is your mitosis. Mother cell divide होके 2 daughter cell पैदा हुआ है. Mother cell divides to 2 daughter cells and number of chromosomes remain same. क्रोमोजोम के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट इज क्रोमोजोम, व्हाट इज इट्स फंक्शन, इनहेरिटेंस कैरेक्टर को जो कंटेन करता है ये क्रोमोजोम. या लुक एट हियर द फिगर. माइटोसिस, मदर सेल डिवाइड होकर 2 न्यू सेल फॉर्म हुआ. इधर ये एक सेल डिवीजन है. इधर क्या हुआ है, मदर सेल पहले डिवाइड होकर 2 हुआ, उसके बाद 4 हो गया, 4 डॉटर सेल एंड bearing the or carrying half number of chromosomes. Here question is mother cell divided to 4 daughter cells, 4 new cells form हुआ है. mother cell divide होके 4 new cells. It is your meiosis, mitosis and meiosis. ये डिफरेंस भी एग्जाम में आ सकता है. एग्जाम में क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, major difference between mitosis and meiosis. Mitosis only cell, mitosis एक सेल डिवीजन है इनसाइड और बॉडी, जो ग्रोथ एंड रिपेयर, जो सेल डैमेज होता है उसका रिपेयर होना चाहिए, और न्यू सेल ग्रोइंग बॉडी को ग्रोथ करता है. ग्रोइंग बच्चे व ग्रोइंग पर्सन को ये सेल डिवीजन चाहिए. सिमिलरली न्यू सेल फॉर्म होगा तो रिप्लेस हो सकता है, रिप्लेस हो जाएगा डेड सेल और डैमेज सेल. इसीलिए माइटोसिस हमारा बॉडी में हो रहा है और एक मदर सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल पैदा होता है. सिमिलरली द another cell division is meiosis. It is required for gamete formation, male gamete and female gamete. रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट चाहिए. गैमेट जब फ्यूजन का प्रोसेस में फ्यूज होगा, एक मेल गैमेट विथ द फीमेल गैमेट और एक सेल, और मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म एंड ओवम. स्पर्म विथ एग सेल फ्यूजन होकर जाइगट फॉर्मेशन होता है. तो जाइगट जब प्रिपेयर हो जाएगा, जाइगट फॉर्म हो जाएगा, उसके अंदर माइटोसिस ही होगा, क्योंकि इनक्रीजिंग द ग्रोथ और बॉडी न्यू सेल फॉर्म होगा तो सेल डिवीजन माइटोसिस ही होगा. दैट मीन्स वी कंक्लूड फ्रॉम दिस माइटोसिस इज नीड फॉर ग्रोथ एंड रिक्वायर डैमेज पार्ट्स, और meiosis is need for reproduction or formation of gametes. Next question, another question. Distance, time gap, dash for a rest body. Distance, time gap, rest body के लिए क्या होता है? Rest body के लिए distance, time gap parallel होता है x axis का साथ और time line का साथ. Parallel to x axis. आंसर होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में. another पेन कहाँ गया, एक मिनट.
ये आंसर होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस और एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स गैस, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एरिया क्या बताता है, डिस्टेंस। 15 क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म। ये एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन था और बहुत सारे क्वेश्चन भी है, तुम प्रैक्टिस करो। और एक वीडियो बहुत जल्दी में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस जरूर मैं प्रिपेयर करूँगा। पहले पढ़ना शुरू कर लॉन्ग टाइम आंसर, डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल मेजर डिफरेंस क्या है। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, वो आ सकता है। अभी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, जितना बार प्रैक्टिस करोगे लिखोगे इतना ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये फिजिक्स का क्वेश्चन, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। और मैं सोचता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन विद्वान एग्जाम में ऑलरेडी है, सिर्फ तुमको लिखना बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन का 3 इक्वेशन है। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये लास्ट इक्वेशन। तो क्या है ये 3 इक्वेशन में लिख के दिखाऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्वेश्चन, एस इक्वल टू यू टी, ये यू है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये 3 क्वेश्चन है इक्वेशंस ऑफ द मोशन। और ये 3 इक्वेशन को लेकर जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फिजिक्स में मोशन चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इक्वेशन को लेकर ही है। तो ऐसा है कि इक्वेशन सब तो तुम्हारा कोर्स में नहीं है, लेकिन जरूर आएगा एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जरूर आएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा ये डिस्टेंस जब पूछेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फार्मूला से होगा, ये इक्वेशन लेकर। ये भी हो सकता है v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जब v u एंड एक्सेलरेशन गिवन, देन यू विल बी पुट द फार्मूला v स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। आप ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 4 मार्क वाला क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। पहले स्ट्रक्चर लिखना है, कैसे स्ट्रक्चर क्या है, उसका बाद फंक्शन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है राइबोसोम नहीं है। ये रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट सिंथेसिस, ग्लोबुल्स सिंथेसिस करने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन इतना ही नहीं, एग्जाम्पल तुम्हारे लिए सिलेक्शन क्वेश्चन मैंने तो कर दिया, लेकिन इसे छोड़कर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकता है। पहले इसको पढ़ना तुम शुरू करो। दूसरा एक वीडियो बहुत जल्दी, आज ये हमारा जो पार्ट 1, ये PT एग्जाम के लिए, PT1 एग्जाम के लिए ये पार्ट 1 वाला वीडियो जब 50 से ज़्यादा व्यू आ जाएगा तो पार्ट 2 कल ही तुम्हारे लिए मैं बनाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो पहले पढ़ना शुरू करो, देन आई विल हेल्प यू।